ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے. کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا. ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. کالعدم تحریک لبیک ہے, اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. وفاقی کابینہ کا قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. کسی کو طاقت کے زور پر ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے. کالعدم تحریک لبیک سے مسلح گروہ کے طور پر نمٹا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس. کالعدم ٹی ایل پی کا سوشل میڈیا ونگ فیک نیوز پھیلا رہا ہے. سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنے دیں گے. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے, 70 زخمی ہیں. پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں. پنجاب میں 2 ماہ کے لیے رینجرز تعینات. امن و امان کے قیام میں صوبائی حکومت سے تعاون کریں گے. کالعدم ٹی ایل پی کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید, متعدد زخمی. فرانس کے سفارت خانے کو بند نہیں کر سکتے. احتجاج کرنے والوں سے ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. عوام کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. وزیر داخلہ شیخ رشید کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. پاکستان حقائق پر مبنی قومی بیانیے پر یقین رکھتا ہے. 20 سال سے مغرب نے پاکستان کا منفی تشخص پیش کیے رکھا. بھارت کا پاکستان کے خلاف جعلی خبروں پر مبنی بیانیہ آشکار ہو چکا ہے. ہمیں اپنے حقیقی قومی بیانیے کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے میڈیا کی جدتوں کے ساتھ چلنا ہوگا. مشیر قومی سلامتی موعد یوسف کا قومی بیانیے سے متعلق سیمینار سے خطاب. بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا. صوبائی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب. تحریک انصاف نے عبدالقدوس بزنجو کی حمایت کا اعلان کر دیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری. حامد خان اور آسمہ جہانگیر گروپ کے امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع. حامد خان گروپ کی جانب سے صدر کی نشست کے لیے امیدوار سردار لطیف کھوسہ ہیں, جبکہ آسمہ جہانگیر گروپ کی جانب سے صدر کی امیدوار احسن بھون ایڈوکیٹ ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کل 3121 ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ملتان کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. آپریشنل تیاریوں, تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ. آرمی چیف کا کوٹ عبدالحکیم میں اسٹرائک کورٹ کی مشقوں کا مشاہدہ. جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ تربیت یافتہ فوج ہی ملک کی علاقائی خود مختاری اور وقار کا تحفظ کر سکتی ہے. پاک فوج آزمودہ فورس ہے جو ملکی دفاع اور سلامتی سے متعلق ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ. دہشت گردوں کی پاکستان افغان سرحد عبور کرنے کی کوشش ناکام. شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید. شہداء میں لانسنائک اسد علی اور سپاہی آصف شامل. جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں. ISPR. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی. ضلع بارہمولہ میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید. نوجوان کو ضلع کے علاقے چیردری میں ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا. بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کا مختلف مقامات پر چھاپے. جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا. افغان عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کو تیار. طالبان حکومت کو بلینک چیک نہیں دے سکتے. برطانوی وزیر اعظم. کوشش ہے کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردی کا مرکز نہ بنے. اقوام متحدہ اور عالمی امدادی اداروں کے ساتھ مل کر انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بورس جانسن کا دارالعوام سے خطاب.
कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात, केसेस और अमवात में नुमाया कमी। 24 घंटे के दौरान 706 केसेस रिपोर्ट, 9 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड। एनसीओसी की मरी एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई, सैकड़ों मुसाफिरों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले के मुकाबले जारी। आज एक मैच खेला जाएगा। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें रात 7 बजे दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबले APTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की दूसरी कामयाबी, बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इंग्लिश टीम ने 125 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। मेगा इवेंट के 21वें मैच में नामीबिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी समेटी। नामीबिया ने 110 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया। और T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना तीसरा मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई में खेलेगी। मैच की तैयारी के लिए खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन जारी। कौमी टीम 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 2 में सरे फहरिस्त है। अफगानिस्तान की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं असर इकबाल बंगवेश। मैं हूं सबा रियाज और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताएं कि विफाकी काबीना ने रियासती रिट यकीनी बनाने के आज़म का इयादा करते हुए 2 टोक अल्फाज में कहा कि कालादम TLP से मुसल्लह गिरोह के तौर पर निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में वाज़े किया गया कि रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। इजलास में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला हुआ। तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना ने कालादम तहरीक लबैक की जानिब से एहतजाज करने और रास्तों को बंद करने के इकदामात पर तशवीश का इजहार करते हुए फैसला किया है कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले अस्करियत पसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। काबीना ने करार दिया कि मौजूदा हालात में रियासत की इज्जत और शहरियों की जिंदगियों का सवाल है। किसी ग्रोह की सोच को बंदूक के जोर पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को कोई कमजोर समझने की गलती न करें। TLP के लोग रास्ते बंद करके हर छठे महीने सड़कों पर आ जाते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। उनके नाम को इस्तेमाल करके सियासत नहीं की जा सकती। काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग में इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर दाखिला ने TLP के साथ होने वाले मुज़ाकरात से काबीना को आगाह किया। इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। पहले 6 दफ़ा ये तमाशा लग चुका। हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। पिछली दफ़ा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में और 49 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा।
इतलात और नशरियात के वजीर ने बताया कि वफाकी काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने फैसला किया कि वजारत पार्लिमानी अमूर आइंदा होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखेगी। काबीना ने सिंध में अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। रीजनल प्राइसेस में सवाए जो घी है, जो कि हिंदुस्तान में को 20 रुपये हमसे सस्ता है, बाकी तमाम चीज़ें इस रीजन में पाकिस्तान अभी भी इस रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने काबीना को ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने और इजारादारी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम के ऊपर ब्रीफिंग दी है, और हमारा ख्वाहिश ये है कि ये जो छोटा फार्मर है इसको हम इक्विप करें कि ये जदीद मशीनरी पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सके। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि काबीना ने रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा के साथ होने वाले मुबैना नारवा सलूक पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आईन हर शहरी को उनके वकार के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाक़िए का नोटिस लेंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमन अमान के क़याम में मदद के लिए पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कलअदम TLP ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाना चाहती हैं। एहतजाज करने वाले होश के नाखून लें। ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस नहाती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 ज़ख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। हालात की संजीदगी को देखते हुए मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। एंटी टेररिस्ट एक्ट का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ। हम नामूसे रसालत के भी सिपाही हैं और ख़त्म नबूवत के भी सिपाही हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान ने बताया कि कलअदम TLP की तरफ से एहतजाज के नाम पर अमन अमान सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। रियासती रेट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फरोग दिया गया। कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया। इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं। क्या रियासत इस बात की इजाज़त दे सकती है कि कोई एक गिरोह पूरे मुल्क को यरगमाल बना दे? पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हर शहरी को पुरअमन माहौल की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है और अमनो अमान की फ़ज़ा बरकरार रखना हमारा मिशन है। हम कानून की अमलदारी को इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान हक़ाइक़ पर मबनी कौमी बयानिए पर यकीन रखता है। हमें अपने हकीकी कौमी बयानी को दुनिया के सामने रखने के लिए मीडिया की जिद्दतों के साथ चलना होगा। इस्लामाबाद में कौमी बयानी से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि हमारा मशरकी हमसाया पाकिस्तान के खिलाफ जाली वेबसाइट्स के जरिए झूठ पर मबनी बयानियाँ अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों पर मबनी बयानियाँ आश्कार हो चुका है। मुईद यूसुफ ने कहा कि 20 साल से मगरिब ने पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश किए रखा। जब भी अमेरिका से हम अहम अफराद पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो वापसी पर उनका पाकिस्तान से मुतालिक नजरिया मुस्बत होता है। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अवैबिक उस्मानोव ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में उज़्बेकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर विक्टर मख्तूदोव के आइंदा दौरे पाकिस्तान के बारे में तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के लिए तारीखी अहमियत का हामिल होगा। ये दौरा दोनों ममालिक के इलाकाई रवाबित की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा करेगा। बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होने वाले सूबाई असम्बली के इजलास में होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जा सकेंगे। दूसरी जानिब सूबे की सियासी शख्सियात में राबिते जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने वज़ारत आला के ओहदे के लिए मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हिमायत का ऐलान किया है।
पी टी आई के सूबाई पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी, वजीर दिफा परवेज खटक और मीर अब्दुल कुदूस बिजिंजो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल को बाहमी ताउन से हल किया जा सकता है। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है। नामजद वजीर आला अब्दुल कुदूस बिजिंजो ने कहा कि हम सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के दौरान इजलास आम आवाम के लिए खुली रहेगी। इजलास के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट से एंट्री पास बनवाना लाजमी है। एंट्री कार्ड्स मेंबरान सूबाई असम्बली की सिफारिश पर बनाए जाएंगे और बगैर विजिटर्स पास असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। हामिद खान ग्रुप की जानिब से सदर की नशिस्त के उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा हैं, जबकि आसमा जहांगीर ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार एहसन भून एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में कल कुल 3121 वोटर्स अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोटर्स लाहौर से 1267 वोटर वोट कास्ट करेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 517 वोट कास्ट होंगे। सिंध से 526 वोटर के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि मुल्तान से 201 और भावलपुर से 69 वोट कास्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में पोलिंग की सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से नवीद हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हैं, सालाना इंतखाबात, उनका अमल जारी है। लाहौर से नवीद हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए साबिक गवर्नर पंजाब जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं और एहसन बोन के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला इस वक्त जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्त के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर बात की जाए इसकी सीटों की तो 2 सदारती उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि सेक्रेटरी की नशिस्त पे 3 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। एहसन बोन जो है वो साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खान खोसा के ही शागिर्द हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए पोलिंग का जो वक्त है वो शाम 5 बजे तक है। अगर वोटर्स की बात की जाए तो 3121 वोटर जो हैं अपनी नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। लाहौर समेत जो है मुल्क भर में टोटल 11 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। लाहौर में ज़्यादा जो बुकला हैं उनकी वोटर्स की तादाद है। जी नवीद, ये बताइएगा कि इस हवाले से गहमा गहमी कैसे देखने को मिल रही है? क्या टर्न अराउंड अच्छा देखने को मिल रहा है? लोग जो वकला हैं क्या वो वोट डालने के लिए बाहर आए हुए हैं? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो वोटर्स की बात की जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। 12,267 जो वोटर हैं वो सिर्फ लाहौर से हैं। अगर टर्न आउट की बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गहमा गहमी है, क्योंकि वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वोट कास्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं। जी, कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी तफसीलात जानते हैं। जी ज़मीर अब्बास, कराची के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें कि बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इस सिलसिले में हमारे साथ कराची से ज़मीर अब्बास फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में भी पोलिंग हो रही है। पाकिस्तान के दीगर जो शहर हैं वहाँ पर भी पोलिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। वकला जो हैं वो वोट डालने के लिए बाहर आए हुए हैं और सबकी कोशिश है कि उनके जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं वो इस मुकाबले में कामयाबी हासिल कर सकें। ये जो इंतखाबात होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उसके हवाले से किए जाते हैं। इसी हवाले से कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कराची में क्या तफसीलात देखने को मिल रही हैं। जी ज़मीर अब्बास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं वो इस जारी हैं। ये पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सिंध में जो है तकरीबन 526 वोट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कि आज अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। आपको पता है जैसे कि 2 कैंडिडेट्स हैं
सरदार लतीफ़ खोसा और मोहम्मद एहसन भून, तो इन दोनों के दरमियान जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी भी है। सिंध हाई कोर्ट में इसका पैनल बनाया गया है और यहाँ पे जो सिंध बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं ज़िया हुसैन लंजार, वो इस वक्त इसकी निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो है वो लगाए गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो वकला के अंदर जो इंटरेस्ट है वो भी हमें देखने में आ रहा है कि वो काफ़ी पुरजोश हैं अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के हवाले से। सुबह में थोड़ा पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार था, ताहम अब जो है वोटर्स बड़ी तादाद में आ रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि अपने टाइम से पहले ही तकरीबन ये 526 अफराद जो है अपना वोट कास्ट कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं उसके लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है और हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त पोलिंग जारी है। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं कि मुल्तान में कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। जी फरहान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में मुल्तान में पोलिंग का अमल भी सुबह 8:30 बजे से जारी है और यहाँ पर वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने हामी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है और काफी जोश व खरोश यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ बात करें अगर सदारत की, तो सदारत की निशिस्त पर हामिद खान ग्रुप के सरदार लतीफ़ खोसा और आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन बोन के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मुल्तान शहर की बात करें तो यहाँ पर मुल्तान में कुल 196 वकला जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पोलिंग का अमल जो है वो सुबह से ही पुरअमन तरीके से जारी है, जबकि दिन 1 बजे से 2 बजे के दरमियान नमाज ज़ोहर का जो है वो वफ़ा होगा, जबकि इलेक्शन के लिए पोलिंग जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुल्तान में जो इलेक्शन के इंतजाम जो हैं उनकी बराह रास्त निगरानी जो है सदर हाई कोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी कर रहे हैं और यहाँ पर अगर बहावलपुर शहर की अगर बात करें तो वहाँ पर टोटल कुल 94 जो वकला जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं और मजमूई तौर पर देखा जाए तो कुल 3121 वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। हेडक्वार्टर्स आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोर्ट अब्दुल हकीम में स्ट्राइक कोर के दस्तों की मशकें भी देखी। मशकों की शुरा से बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज बेहतरीन तरबियत याफ्ता और आजमूदा जंगी फोर्स है। पाक फौज मुल्की दिफा और सलामती से मुतालिक हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद हमारा फोकस पाक फौज की रिवायती सलाहियत में इजाफा है। उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस, साइबर और मैकेनाइजेशन की सलाहियतों में इजाफा तरजीह है। तरबियत याफ्ता और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी से मुसल्लह फौज ही जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर सकती है। पाक फौज ने जिला करम के नजदीक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सरहद पार करने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर फौरी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 24 साला लांस नाइक असद अली और 21 साला सिपाही आसिफ शामिल है। लांस नाइक असद का ताल्लुक जिला करम और सिपाही आसिफ शहीद का ताल्लुक लकी मरवत से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से ये उम्मीद करता है कि वो अपने सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। दहशतगर्दी के इस तरह के वाक़यात में हमारे बहादुर नौजवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। मसल्ह फ़ौज की अस्करी क़यादत ने पाक फ़ज़ाई के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी कसीर मुल्की अस्करी मश्क एज़मीट 2021-22 का जायजा लिया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर वाइस मार्शल इम्तियाज़ सितार, मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी ने मशकों का जायजा लिया। एयर वाइस मार्शल काशिफ कमर, एयर वाइस मार्शल अकराम नूर, एयर वाइस मार्शल आसिम रशीद मलिक और रेयर एडमिरल नईम सरवर भी शुरका में शामिल थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने फ़ज़ाई मशकों में हिस्सा लेने वाले अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और मशकों की तारीफ की और कहा कि ये मशकें दोस्ती और तावन को मज़ीद फ़रोग़ देंगी। पाक फ़ज़ाई और तुर्क फ़ज़ाइया की मशकें रवा माह की 15 तारीख से शुरू हुई थी, जिनमें बरतानिया और उज़्बेकिस्तान की फ़ज़ाइया को बतौर मुबस्सर मशकों में शिरकत की दावत दी गई थी। पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर ने मिस्र का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिस्र की बंदरगाह ब्रिंस आमद पर मेज़बान बहरिया और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज़ का इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर के हमरा
میزبان بحری حکام سے اہم ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی کی امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ مصری بحریہ کے صدرن فلیٹ کمانڈر نے پاکستانی جہاز کا دورہ بھی کیا۔ مصر کی بندرگاہ سے روانگی کے بعد دونوں ممالک کے بحری جہازوں نے مشترکہ مشق کا انعقاد کیا۔ مصر آمد سے قبل PNS عالمگیر نے جاپانی بحریہ کے جہاز یوگری کے ساتھ دو طرفہ مشق میں شرکت کی۔ PNS عالمگیر نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کے تحت کثیر ملکی انسداد قزاقی آپریشن میری لیبریم میں بھی حصہ لیا۔ ترجمان پیک بحریہ کے مطابق PNS عالمگیر کے مصر کے دورے اور دیگر ممالک کے ساتھ مشقوں میں شرکت سے دوست ممالک بالخصوص بحری افواج کے ساتھ تعلقات اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 10 سال میں پہلی مرتبہ 96% ترقیاتی فنڈز استعمال کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینشن سسٹم، ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور پراپرٹی ٹیکس میں دورس اصلاحات لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ پنجاب اپنے ذرائع سے رواں مالی سال 400 ارب روپے ریونیو وصول کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم ریکارڈ 740 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 560 ارب روپے کی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت صوبے میں منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ سال کے ترقیاتی بجٹ کی نسبت رواں سال کے ترقیاتی بجٹ میں 66% اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 98% اسکیمیں منظور کی جا چکی ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے میں 706 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 9 اموات ہوئیں، جس کے بعد کل اموات کی تعداد 28,414 ہو گئی۔ گزشتہ روز 49,486 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.42% ریکارڈ کی گئی۔ اس وقت ملک میں کرونا کے کل 23,449 مریض ہیں۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ مکمل ویکسینیشن شدہ افراد کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ NCOC ٹیم نے سیکریٹری RTA راولپنڈی کے ساتھ مری ایکسپریس وے پر 17 میل ٹول پلازا کے مقام پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سینکڑوں مسافروں کو کورونا ویکسین لگائی۔ ٹیموں نے ہوٹلز کے صارفین، عملے کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس بھی چیک کیے اور SOPs کی خلاف ورزی پر مختلف ریسٹورنٹس کو سیل کرنے کے علاوہ بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع بارہمولہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے چردری میں تلاشی اور محاصرے کی ایک اور کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں فوجی کارروائی جاری تھی۔ ادھر بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے اسلام آباد، کولگام، گاندربل، بانڈی پورہ، بڈگام، کشتواڑ اور جموں کے اضلاع میں 17 مقامات پر چھاپے مارے اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یوم سیاہ کے موقع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے، جس میں انہیں غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے اپنے خط میں لکھا کہ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ 5 اگست 2019 کے ایک طرفہ بھارتی اقدام کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کی مہم چلا رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے سریحاً خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے خط میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن اور ظلم و جبر پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے اپنے خط میں عالمی برادری کی بھارتی جعلی فلیگ آپریشن کی مذموم عزائم سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست کے ایک طرفہ اقدامات کو واپس کرے اور وہاں جاری ظلم اور آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کے اقدامات کو بھی روکے۔ پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کے پونچھ سیکٹر میں بھارتی قابض افواج کی حراست میں پاکستانی شہری ضیاء مصطفیٰ کے قتل پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد کے مطابق بھارتی ناظم الامور سے کہا گیا کہ پاکستانی قیدی کا جیل سے دور مقام پر پراسرار حالات میں قتل ہونا نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ بھارت میں پاکستانی قیدیوں کے تحفظ اور سلامتی کے حوالے سے سنگین سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ اس قسم کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔
पाकिस्तान भारत की जानिब से पाकिस्तानी और कश्मीरी कैदियों के जाली मुकाबलों में और मावराए अदालत कत्ल के घिनौने भारतीय अमल की मजम्मत का इरादा करता है। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े का शफाफ तहकीकात करके इंसाफ को यकीनी बनाए और भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई या वतन वापसी तक उनकी हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। सेनेट की कामा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट ने श्रीनगर में पाकिस्तानी टीम की जीत पर खुशी मनाने पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के खिलाफ मुकदमात के इंदराज को अफसोसनाक करार दिया है। मजलिस कामा का इजलास चेयरमैन सेंट्रल राना मकबूल अहमद की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। चेयरमैन कमेटी सेनेटर राना मकबूल अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। कमेटी ने मुतफ़क्का करारदाद मंजूर करके भारतीय मुसलमानों और कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ गैर इंसानी सलूक और गैर कानूनी इक़दाम की सख्त मजम्मत की। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। यौम स्याह के मौके पर फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारतखाने में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों की हालत ज़ार पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर अमजद अजीज़ काजी ने अपने खिताब में कहा कि आज से 74 बरस कबल भारत ने कश्मीरियों की ख्वाहिशात और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़म का इरादा किया। पाकिस्तानी कौंसल खाने न्यूयॉर्क में यौम स्याह पर एक सेमिनार हुआ। सेमिनार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि भारतीय अफवाज मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा किया। तकरीब में पाकिस्तानी अमरीकी नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुबई में यौम स्याह कश्मीर के मौके पर पाकिस्तानी कौंसल खाने में तकरीब का इनेकाद किया गया। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी बरादरी ने तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत की। कौंसलर जनरल पाकिस्तान हसन अफजल खान ने वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान का यौम स्याह के हवाले से पैगाम पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर आज तक ये दिन भारतीय गैर कानूनी इक़दामात और जुल्म जबर को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तकरीब से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने खिताब करते हुए कश्मीर से यकजहती और भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की। मुकर्ररीन ने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका बुनियादी हक मिल सके। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मजलूम कश्मीरियों से इजहार हमदर्दी के लिए कश्मीर यौम स्याह मनाया गया। तकरीब में सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा के कश्मीर से मुतल्लिक़ पैगामात पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने अपनी आज़ादी के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद पर कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश किया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से किए जाने वाले मज़ालिम पर रोशनी डाली। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, दुनिया को मकबूजा कश्मीर में किए जाने वाले मज़ालिम की मज़म्मत करनी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करने पर जोर दिया। भारत ने 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक एग्नी 5 मिसाइल एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजर्बा भारत के मशरकी साहिली जजीरे अब्दुल कलाम से किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से एक इसराइली सॉफ्टवेयर की मदद से अपने सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनों की मुबैना जासूसी के मामले की छानबीन करेगी। अदालत उस्मा ने यह कदम सहाफ़ियों, हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों और कारकुनान की जानिब से दायर करदा एक पटिशन पर उठाया है।
برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے کہا کہ ان کا ملک افغان عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کو تیار ہے، لیکن طالبان حکومت کو بلینک چیک نہیں دے سکتے۔ دارالعوام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم بورس جانسن نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی امدادی اداروں کے ساتھ مل کر افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ ملک دوبارہ دہشت گردی کا مرکز نہ بن پائے۔ ترکمانستان کے حکام رواں ہفتے کابل کا دورہ کریں گے اور تاپی گیس پائپ لائن پر کام جاری رکھنے کے سلسلے میں بات چیت کریں گے۔ افغان حکومت کے معدنیات اور پیٹرولیم کے وزیر محمد عیسیٰ خوند نے ایک بیان میں کہا کہ ہم تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر کام کے لیے تیار ہیں۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی گیس پائپ لائن ہوگی اور یہ 33 ارب میٹر قدرتی گیس سالانہ فراہم کرے گی۔ یہ پائپ لائن افغان شہروں ہرات اور قندھار سے گزرتے ہوئے پاکستان پہنچے گی۔ اسرائیل نے فلسطین کے مقبوضہ علاقے مغربی کنارے میں مزید 1355 مکانات کی تعمیر کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل اگست میں اسرائیل نے تقریباً 2000 مکانات پر مشتمل ایک نئی بستی بسانے کا منصوبہ منظور کیا تھا اور نیا اعلان اس فہرست میں ایک اور اضافہ ہے۔ نئی بستیوں کی تعمیر سے فلسطینی ریاست کے قیام کی امیدوں کو نقصان پہنچے گا اور اس سے خطے میں امن کے قیام کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ مشرقی عراق کے گاؤں پر داعش کے حملے میں 11 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صوبہ دیالیہ میں مقداد شہر کے قریب حملے میں متعدد شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے موقع پر لواحقین کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے افراد غیر مسلح اور بے گناہ تھے۔ عراقی صدر ابراہیم صالح نے ٹویٹر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عراق کو غیر مستحکم کرنے کی گھناؤنی کوشش ہے۔ ایران نے ایٹمی مذاکرات کے دوبارہ آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے کہا ہے کہ ایران نومبر کے آخر میں 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کرے گا۔ ان مذاکرات کا مقصد امریکہ کو دوبارہ جوہری معاہدے کا حصہ بنانا ہے، جبکہ سابق امریکی صدر نے یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا۔ ایران میں صدارتی انتخابات کی وجہ سے جوہری مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ ادھر سوڈان میں اقتدار پر فوج کے قبضے کے بعد افریقی یونین نے سوڈان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ کینیا کے دارالحکومت نیزدبی میں تنظیم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں سوڈان میں منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ خرطوم کی رکنیت جمہوریت اور آئین کی مکمل بحالی تک معطل رہے گی۔ اسپین کے کنیری جزائر کے لاپالما جزیرے میں پھٹنے والے آتش فشاں دوسرے مہینے بھی لاوا اگل رہا ہے۔ یہ لاوا رہائشی مکانات سمیت ہزاروں عمارتوں کو ملیہ میٹ کر چکا ہے۔ یہ لاوا 2223 ایکڑ زمین پر پھیل چکا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں کیلے کے باغات کو بھی تباہ کر چکا ہے۔ علاقے میں مقیم 7000 افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اسپین کے نیشنل جیوگرافک انسٹی ٹیوٹ کے ایک آتش فشاں ماہر نے کہا ہے کہ لاپالما کے اخراج والے علاقے کے اندر آتش فشاں کی سرگرمیاں بڑھنے کا امکان ہے۔ اسکردو میں وزارت تعلیم کے زیر اہتمام ڈونر کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں گلگت بلتستان میں مختلف شعبوں میں جاری تربیتی پروگراموں کی اہمیت سی پیک منصوبے کی روشنی میں اجاگر کیا گیا۔ اس کانفرنس سے متعلق اسکردو سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم کی رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں فنی و دستکاری کی تعلیم و تربیت سے متعلق ڈائریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ حکومت پاکستان کی جانب سے اسکردو میں ایک روزہ ڈونرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر سید امجد علی زیدی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ہنرمند پاکستان کی تشکیل کے لیے سرگرم عمل ہیں اور محکمہ تعلیم کے تحت طلباء و طالبات کو فنی تربیت اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر تعلیم راجہ محمد اعظم خان نے کہا کہ سی پیک منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے۔ منصوبے کے لیے ہمیں مختلف شعبوں میں ہنرمند نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کے سیکریٹری تعلیم اقبال حسین خان نے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی بالخصوص فنی تعلیم کے شعبے کی ترقی سے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈونرز کو گلگت بلتستان میں 2017 سے اب تک نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں دی گئی تربیت کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عرصے میں گلگت بلتستان کے 7 اضلاع میں ٹریننگ سینٹرز قائم کر کے اب تک ہزاروں افراد کو ہنرمند بنایا جا چکا ہے۔ جرمن سپورٹ کی وجہ سے جی بی کا اپنا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈائریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ ہے۔ جی بی کا اپنا ایک قانون بن گیا ہے، جی بی ٹی ویٹ ایکٹ، پھر اس کے بعد جی کا ٹی ویٹ بورڈ ہے۔ جدید دور کے تقاضوں اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کو فنی تربیت کا حامل ہونا ناگزیر ہے۔ قاسم نسیم، پی ٹی وی نیوز، اسکردو۔
अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ झंग की ज़िला इंतज़ामिया मैदान में आ गई। इस हवाले से देखते हैं सैयद अदनान नूर की रिपोर्ट। इशाए खुर्दनोश की कीमतों में मनमर्जी का इजाफा करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया झंग मैदान में आ गई। डिप्टी कमिश्नर झंग अपने अफसरान के हमरा सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी पहुंच गए। इसमें एक तो हमने तकरीबन 8 लाख के करीब जुर्माने किए हैं जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे, उन पर FIRs दिए हैं, वो 45 के करीब हैं और 133 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। सब्जी मंडी और फ्रूट मंडियों के दौरे का मकसद बोली के अमल का जायजा लेने के साथ इशाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेकाम लाना और नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करना है। गवर्नमेंट पंजाब की जानब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो काबिल तस्लीम है। जो 90 रुपये kg हमें चीनी मिलनी शुरू होगी, 110 से 90 रुपये kg में मिलनी शुरू होगी, ये भी महंगाई के खिलाफ बहुत अच्छे है और हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि ऐसे इकदाम करती रहे। वो आवाम को महंगाई से बचाने और कीमतों को इतदाल में रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बाजारों में रेट लिस्ट के मुताबिक इशाए खुर्दनोश की फरोख्त को यकीनी बनाने की हदायत की है। कुछ साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने और नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमत ने अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, झांग। गर्ल्स गाइड एसोसिएशन बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम छाती की कैंसर की आगाही के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं बहावलपुर से मुख्तार अंजुम की इस रिपोर्ट में। डिविजनल गर्ल्स गाइड हाउस बहावलपुर में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम छाती के कैंसर की आगाही बारे मुनक्दा सेमिनार की शुरा को तालबात ने खूबसूरत अंदाज से वेलकम किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वीएन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की रोशनी में मिसिस जहूर अहमद चौहान ने उज़मा अहमद, आसिया बानो, बीनिश हसन, इरम बतूल और दीगर के हमरा अपने दस्ते मुबारक से पौधा लगाया और दुआ की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने छाती के कैंसर के हवाले से मुकम्मल आगाही दी और शुरा के सवालों के जवाबात भी दिए। डॉक्टर तैयबा असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर शहनाज असिस्टेंट प्रोफेसर बहावल विक्टोरिया अस्पताल ने छाती के कैंसर के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिया। ये बहुत हेल्पफुल मुझे लगा है क्योंकि अगर हम इस तरीके के सेमिनार अटेंड करेंगे और हमें अवेयरनेस इस चीज़ की होगी तो ही गर्ल्स हम नेक्स्ट मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा करने के काबिल होंगे। और ये साल गर्ल गाइड का अमन के हवाले से और हम अमन पे काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि हर इंसान का एहतराम करें और गर्ल गाइड हमेशा से आगे है बच्चों को, इन बच्चियों को पॉलिश करने में, ताकि वो उनकी क्वालिटीज़ को पॉलिश करके उनके आगे लाएं। बुनियादी मकसद था कि बच्चियां अपने आप को 5 मिनट का टाइम दें सेल्फ असेसमेंट के लिए क्योंकि 9000 से ज़ायद सालाना केसेस आ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल शादरा के बच्चों ने शजरकारी के हवाले से खूबसूरत परफॉर्मेंस दिखाई और प्रोग्राम को रंगारंग बना दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोसर कॉलोनी के बच्चों ने हाथ से बनाई अशिया की नुमाइश की जिसको शुरा ने बेहद सराहा। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। नाजरीन, TLP के साथ झड़पों में पुलिस कांस्टेबल गुलाम रसूल शहीद हो चुके हैं। जख्मों की ताब ना लाते हुए वो पुलिस स्टेशन सदर कसूर में तैनात थे और मुरीद के मकाम पर जो झड़पें हुई हैं वहाँ पे वो शहादत के मरतबे पर फाइज हो गए हैं। इस हवाले से मोहम्मद सुफियान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कसूर पुलिस स्टेशन सदर के इलाके के कांस्टेबल गुलाम रसूल भी फर्ज की राह में शहीद हो गए हैं। कलदम तंजीम के तशद्दुद से वो गुज़श्ता रोज जख्मी हुए, जिसके बाद उन्हें मुरीद के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और वो आज सुबह जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। अब तक 6 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि 70 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है, जिनके इलाज मुआवजे के लिए पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। हॉस्पिटल के मुख्तलिफ दौरे भी कर रहे हैं। तो तफसील के मुताबिक अब तक 6 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और आज सुबह गुलाम रसूल, जिनका ताल्लुक कसूर पुलिस स्टेशन सदर के इलाके से था, वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुफियान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में जराइम पेशा नासिर से निपटने के लिए
خاصدار فورس کو کمیونٹی پولیسنگ میں ضم کرنے کا عمل جاری ہے۔ خاصدار فورس کے اہلکاروں کو کمیونٹی پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت دی جا رہی ہے۔ تفصیل محمد اللہ خان افریدی سے جانتے ہیں۔ برطانوی دور حکومت سے قبائلی اضلاع میں امن و امان کے قیام خاصدار فورس کی ذمہ داری تھی، جو قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام تک اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہی۔ انضمام کے بعد اس فورس کو کمیونٹی پولیس میں ضم کر دیا گیا، جس کے بعد ان کو کمیونٹی پولیسنگ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ضلع خیبر میں خاصدار فورس کے 4000 اہلکار ہیں، جن میں سے 2500 اہلکار منصہرہ شاکس لیوی سینٹر اور جمرود قلعے میں واقع ٹریننگ سینٹر میں تربیت مکمل کرنے کے بعد مختلف علاقوں میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ابھی جو لاسٹ بیچ ہے 1700 پولیس پرسنل کا، وہ الحمدللہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری پوری کی پوری فورس وہ ٹریننگ حاصل کر چکی ہوگی۔ خاصدار فورس کے تربیت پانے والے اہلکاروں کو جسمانی فٹنس، پولیس قوانین، بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری، اسلحہ کے مؤثر استعمال، آرمڈ کمبیٹ، پی ٹی ڈرل، پولیس فیلڈ ورک اور عوام کے ساتھ پولیس کے طرز عمل کے بارے میں 3 ماہ بھرپور تربیت دی گئی ہے۔ خاصدار فورس کے صوبائی پولیس میں انضمام کے بعد انہیں وہ تمام مراحت حاصل ہوگی جو خیبر پختونخوا پولیس کو حاصل ہے۔ جو ڈیسیز ہیں، جو فوت شدہ اہلکاران ہیں، ان کی فیملیز کو پینشنز بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو فوراً سے ملی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو بلٹ پروف جیکٹس، ہیلمٹس، ویپنز، گاڑیاں یہ حوالہ کی ہیں۔ ضلع خیبر میں پولیس کی تربیت کے ساتھ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے کوئک ریسپانس فورس بھی تعینات کی گئی ہے۔ خاصدار اہلکاروں کو کمیونٹی پولیسنگ کی تربیت کا عمل اس سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ضلع بھر میں نئے پولیس اسٹیشن کا قیام اور سہولت دینے سے ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کے قیام کے ساتھ ساتھ جرائم میں بھی کمی آئے گی۔ محمد اللہ خان افریدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پولیس لائن خیبر۔ سعودی عرب میں موسم ریاض کا رنگا رنگ ایونٹ اپنی پوری رونائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ دارالحکومت میں کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کی بلند و بالا عمارتوں سے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا، جس سے رنگوں کی برسات نے آسمان کو رنگین بنا دیا۔ آتش بازی کے شاندار مظاہرے کو دیکھنے کے لیے سعودی اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ ملک کے بالائی پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، جبکہ بالائی علاقوں میں موسم سرد رہا۔ کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے: لے میں -4 اور کالام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔